پاک چین اسٹریٹجک تعلقات باہمی اعتماد، غیر متزلزل حمایت اور مشترکہ عزم کی مثال ہے۔ پائیدار شراکت داری علاقائی استحکام کو فروغ دینے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا GSQ میں چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے قیام کی 98ویں سالگرہ کی تقریب سے خطاب۔ چینی سفیر تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ چینی دفاعی اتاشی اور دیگر حکام کی بھی شرکت۔ فیلڈ مارشل نے چینی لبریشن آرمی کے کردار کو سراہا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کل سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اعلیٰ سطح وفد بھی ایرانی صدر کے ہمراہ پاکستان پہنچے گا۔ ایرانی صدر وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقات کریں گے۔ ایرانی صدر کے دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان برادرانہ تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ صدر مسعود پزشکیان گزشتہ 2 برسوں میں پاکستان کا دورہ کرنے والے دوسرے ایرانی صدر ہوں گے۔ Pakistan without any verifiable evidence or a credible investigation into the Pahalgam attack. During the intervening night of 6th and 7th May 2025, India's targeting of the alleged terrorist infrastructure resulted actually in the martyrdom of innocent men, women and children. India failed to achieve any of its strategic objectives. On the other hand, Pakistan's resounding success in neutralizing Indian fighter jets and military targets is an indisputable fact. آپریشن مہادیو کے بھارتی دعوے پاکستان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ پاکستان آپریشن سندور پر ہندوستانی رہنماؤں کے بے بنیاد اور اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کرتا ہے۔ پاکستان کا بھارت کو واضح پیغام۔ ترجمان دفتر خارجہ نے پریس بریفنگ میں کہا کہ بھارت نے بغیر کسی ثبوت پاکستان پر حملہ کیا۔ پاکستان نے بھارت کو تحقیقات کی بھی پیشکش کی۔ بھارت نے جج، جیوری اور جلاد کا کام خود ہی کیا۔ بھارت سن لے، کسی بھی ممکنہ جوہریت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہمارا اس بھارت کے ساتھ جو 5 دن کا جنگ رہا، پاکستان کی میڈیا برادری نے عالمی سطح پہ ایک مقابلہ ہو رہا تھا۔ بھارتی صحافت اور پاکستان کی صحافت آمنے سامنے آ گیا، اور میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان کی ایئر فورس نے بھارت کو 6-0 ہرایا ہے، تو ویسے ہی ہمارا صحافی برادری نے بھارت کے صحافی برادری کے مقابلے میں آپ نے اپنا لیجٹمیسی کو، آپ نے اپنا کریڈیبلٹی کو، اور آپ نے اصل معنی میں جو فریڈم آف دا پریس ہوتا ہے اس کا ثابت کیا۔ پاک بھارت جنگ کے بعد اندازہ ہوا ڈیجیٹل میڈیا ایک ہتھیار ہے۔ عالمی سطح پر بھارتی اور پاکستانی میڈیا آمنے سامنے تھا۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پاکستانی میڈیا نے بہترین کردار ادا کیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب۔ بولے کہ جنگ سے پہلے ڈیجیٹل میڈیا پر پابندیاں تھیں، بعد میں پتہ چلا یہ تو اصل ہتھیار ہے۔ ڈس انفارمیشن اور مس انفارمیشن ایک ہتھیار بن چکا۔ جنگ میں بھارت کو شکست ہوئی، مگر اس نے اسی ہتھیار کو استعمال کیا۔ یہ اتحاد اور اپوزیشن کانفرنس میں شریک جماعتیں ملک میں جاری فسطائیت اور سیاسی انتقام کی لہر کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ ہم عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ بشرا بی بی کی ناحق قید کی مذمت کرتے ہیں اور ان کی جلد از جلد رہائی اور ان کے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی فوراً سماعت کے لیے مقرر کیے جانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ مزید یہ کہ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی اور سینٹ اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی سمیت درجنوں تحریک انصاف کے کارکنان کو دی گئی سزاؤں کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہائیبرڈ نظام ملک سے اپوزیشن کے خاتمے کے لیے کوشاں ہے۔ اپوزیشن پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ ملک میں پارلیمانی جمہوری نظام مکمل تباہ ہو چکا۔ سیاسی رہنماؤں کو سزا دینے کی مذمت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو فوری رہا کیا جائے۔
2024 इलेक्शन नताइज मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाया जाए और SIFC को तहलील किया जाए। और एक अवाम दोस्त बजट था और ना इनको उस बजट के हवाले से कोई ऐसी चीज मिली जिस पर ये तनकीद कर सकें, ना मुआशी इशारिये जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वाले से इनको कोई चीज मिल रही है जिस पर ये तनकीद कर सकें। और मुझे हैरानगी हुई कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब जो एक रियल एस्टेट माफिया का हिस्सा हैं और उनकी पूरी फैमिली रियल एस्टेट के एक ऐसे बिजनेस से मुंसलिक रही है जिसमें जबर, जोर जबरदस्ती और गुंडागर्दी के अलावा कोई दूसरा अंसर शामिल नहीं रहा, तो आज जब वो कौम को लेक्चर दे रहे हैं तो जरा ये भी बता दें कि उनकी फैमिली ने जो रियल माफिया एस्टैब्लिश किया वो कैसे किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की अपोजिशन की APC पर तनकीद, बोले कि अपोजिशन हमेशा गैर मुल्की सरबराहान के दौरे को सबोताज करने की कोशिश करती है। बानी PTI के दौर में दोस्त मुल्कों से ताल्लुकात खराब हुए और मईशत तबाह हुई। ये शर्तें लगाते हैं कि मुल्क कब डिफॉल्ट करेगा। मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, इनको मुल्क की तरक्की हजम नहीं होती। मुस्तफा खोखर का खानदान खुद एक माफिया है, ये पहले इसकी तफसील अवाम को बताएं। 5 तारीख को जो हमारी रैलीज है वो पूरे मुल्क में रैलीज होगी। आइंदा काला अमल क्या होगा वो हम आप लोगों के सामने रहेंगे। इसी तरह से पॉलिटिकल लीडर्सों को ऐसे देंगे, कन्विक्ट कराएंगे। पूरी दुनिया में यही भी होता है कि जिन लोगों के पास क्रिमिनल केसेस शुरू हुए होते हैं, ये आइन में भी लिखा हुआ है, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस शुरू हो चुके होते हैं उन लोगों के खिलाफ आप इम्यूनिटी देते हो, उनको उस वक्त तक ट्रायल नहीं चलाते जब तक उनका टेनेवर पूरा नहीं। आवाम की आवाज़ की बड़ी वो चीज़ है, ये आइन की रिक्वायरमेंट है, आइनी रिक्वायरमेंट है कि जिन लोगों के पास ये होते हों उनके पास इम्यूनिटी हो, उनके केसेस ना चलें जब तक कि उनका वो टेनेवर पूरा ना हो। 5 अगस्त को एहतजाज सिर्फ एक दिन का होगा, पूरे मुल्क में रैलियां होंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीके T20 मैच नहीं होती, 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहेअमल देंगे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि हम रियासत के वफादार हैं, मुल्क में अमन चाहते हैं, हम अदालतों का रुख करेंगे, मगर ये मुकदमा हमने अवाम की अदालत में लड़ना है। 5 अगस्त को अवाम का पुरअमन एहतजाज होगा, 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। नौ मई जुडिशल कॉम्प्लेक्स मियांवाली केस में अहमद खान बचार इश्तिहारी करार। ATC सरगोदा ने गिरफ्तार मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद की सजा सुना थी। अदालत ने PTI रहनुमा अहमद चट्टा और बिलाल एजाज समेत 51 मुल्जिमान को इश्तिहारी करार दे दिया। मुकदमे में अदालत उमर अयूब के पहले ही नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुकी। अदालत का DPO मियांवाली को 1 माह के अंदर तमाम इश्तिहारी मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंडिया आज से नहीं हमेशा से पाकिस्तान के अंदर और इस पूरे खित्ते के अंदर जितनी दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर इन्वॉल्व है। और मैं कश्मीर का और गिलगित बल्तिस्तान का भी मिनिस्टर रहा हूँ। अब मैं FATF को ख़त भी लिख रहा हूँ और साथ साथ फिज़िकली जाकर वहाँ पर उनको इसके ऊपर पूरी जाके वज़ाहत से बताऊँगा भी सही कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जो तुम कर रहे हो और कब से कर रहे हो और क्या क्या तुमने किया है, इसके अलावा पूरे पाकिस्तान में जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का FATF में भारत को एक्सपोज करने का ऐलान। बोले कि भारतीय हुकूमत ने FATF में मेरे बयान को सियाको सबाक से हटाकर पेश किया। भारत पाकिस्तान और खित्ते में होने वाली दहशतगर्दी में मुलव्वस है। FATF को खत लिख रहे हैं, बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी कराने में भारत का किरदार सामने लाएंगे। मोदी को पैगाम है कि पाकिस्तान के दिफा के लिए हम मुत्तहद हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस कई कुर्बानियां दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने अली अमीन गंडापुर को आड़े हाथों ले लिया। बोली कि भारत का गंडापुर के बयान को FATF में इस्तेमाल करना पूरी PTI के लिए शर्मनाक है। इनका सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं। शहबाज शरीफ ने दिन रात सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम FATF से निकलवाया।
तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया कराने के लिए हर बार इस्तेमाल किया। इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। तिजारती मुआहदे के बाद पाकिस्तान को ट्रंप टैरिफ में रिलीफ। अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर 19%, भारत पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। अमरीकी सदर ने मुख्तलिफ ममालिक पर टैरिफ से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। इत्तलाक आज से होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका ने कनाडा पर टैरिफ 25% से बढ़ाकर 35% कर दिया। बांग्लादेश पर 20, तुर्की और इसराइल पर 15% टैरिफ आयद, जबकि जनूबी अफ्रीका पर 30, वियतनाम पर 20% टैरिफ आयद होगा। कराची में मस्जिद के बाहर फायरिंग, सीनियर वकील शमसुल इस्लाम जबहाक बेटा जख्मी। हमले की सीसीटीवी फुटेज कैपिटल टीवी को मौसूल। कातिल की शनाख्त इमरान अफरीदी के नाम से हुई। पुलिस की शहर भर में नाकाबंदी, मुख्तलिफ इलाकों में छापे जारी। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कातिल ने कहा कि वो वालिद के कत्ल का बदला ले रहा है। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा शम्स को फौरी अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाँबा न हो सके। वो 30 साल से वकालत से मुंसलिक थे। सादिकाबाद में एक कच्चे के डाकू का पुलिस चौकी पर हमला, 5 एलीट जवान शहीद, 2 जख्मी। शहीद 5 एहलकारों की नमाज जनाजा सादिकाबाद पुलिस लाइंस में अदा कर दी गई। आईजी पंजाब, एडिशनल आईजी एलीट पुलिस फोर्स, रेंजर्स और पाक फौज के अफसरान, शहदा के अहल खाना, सीनियर पुलिस अफसरान और एहलकारों की नमाज जनाजा में शिरकत। पुलिस के चाको-चौबंद दस्ते ने शहदा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। आईजी पंजाब ने शहदा के जस्से खाकी को सलामी पेश की। पाकिस्तान का अमन बलोचिस्तान के अमन से मुंसलिक है। बैरूनी दुश्मनों और फितना और हिंदुस्तान का मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। राना सनाउल्लाह की जमात इस्लामी के रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। बोले कि वजीर आजम बलोचिस्तान के मसाइल के हल के लिए पुरअज़्म हैं। बलोचिस्तान के हवाले से कमेटी तश्कील दी जाएगी। जमात इस्लामी रहनुमा का कहना था कि बलोचिस्तान के अवाम के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। हम पुरअमन सियासी कारकुन हैं। उम्मीद है कि तमाम स्टेक होल्डर्स से बात होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बारिशों के नतीजा में जानी और माली नुकसानात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म की होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुख की इस घड़ी में अवाम के साथ खड़े हैं। जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करूंगा। नुकसान की अजाली के लिए इमदादी पैकेज भी दिया जाएगा। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। बताया कि मुल्क भर में 295 अमवात हुई, 700 अफराद जख्मी हुए और 1600 घर तबाह हुए। इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। महकमे मौसमियात ने लाहौर, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहिब, फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। जबकि दीर, सवात, शांगला, मानसेरा, कोहिस्तान, एबटाबाद, कोरंगू के बरसाती नालों में तुग़यानी का खतरा। तर्जुमान PDM के मुताबिक दरियाए जेहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल है। तरबेला डैम में पानी की सतह 88% हो गई। लाहौर में स्मोक के सद्देबाब के लिए जदीद और मौसर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला पंजाब का एक्स पर पैगाम। बोले कि दुनिया का पहला आजमूदा डस्ट सस्पेंशन सिस्टम 15 जदीद एंटी स्मोक गन के साथ लाहौर पहुंच चुका। ये सिस्टम सैटेलाइट डेटा, ड्रोन और AI सिस्टम से मुंसलिक होगा। आलूदगी की शिद्दत बढ़ने पर एंटी स्मोक गन्स खुदकार तौर पर फार हो जाएंगी। स्मोक के खिलाफ जंग टेक्नोलॉजी, जिद्दत और अवाम के साथ जीतेंगे। इस साल हुकूमत पाकिस्तान और सूबों ने मिलके ये फ़ैसला किया कि हम अपना यौम आज़ादी 14 अगस्त को जो आता है वो सिर्फ 14 अगस्त नहीं बल्कि 1 अगस्त से शुरू करेंगे। और ये मैं मुबारकबाद देता हूँ कराची चेंबर को कि इस हवाले से, मुझे पता नहीं और सूबों में कोई इवेंट हुआ है कि नहीं, लेकिन सूबा सिंध का उस हवाले से जो 14 दिन की सेलिब्रेशन है, ये पहला इवेंट है।
आज यौम आज़ादी का पहला केक काटा। आइंदा 14 रोज जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाई जाएंगी। वज़ीर सिंध का तकरीब से खिताब, बोले कि माई कराची इवेंट शहर की पहचान बन चुका। नुमाइश में कई मुल्क शिरकत करेंगे। हमें मार के हक में भरपूर कामयाबी मिली। भारत अपनी शिकस्त सदियों तक याद रखेगा। कराची में वो वक्त भी था जब अमन अमान के लिए भत्ता देना पड़ता था। कराची में वो वक्त भी था जब प्रोडक्शन के लिए भी भत्ता देना पड़ता था। गजा में सेहूनी बर्बरियत जारी। इसराइली फोर्सेस की गजा में बेदरेग बमबारी से मजीद 111 फलस्तीनी शहीद, 820 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज ने बगैर किसी पेशगी वार्निंग इमदाद के मुंतज़िर लोगों पर गोलियां बरसाईं। हमलों में इमदाद के मुतलाशी 91 फलस्तीनी शहीद हो गए। दूसरी जानिब अमरीकी अखबार ने गजा पर इसराइली हमलों में शहीद बच्चों के नाम जारी कर दिए। 900 से ज्यादा बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद कर दिए गए।